السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج بات کریں گے جی کہ آنٹی جی کی بیٹیاں بہت جلدی تھک جاتی ہیں، اتنی جلدی تھک جاتی ہیں نا، اور وہ 2-3 دن اپنی امی کے گھر نہ آئیں تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ڈپریس جب وہ امی کے گھر آتی ہیں تو یہی کہتی ہیں کہ آج کتنے دنوں کے بعد امی کے گھر آئیں۔ لیکن ایک ایسی خاتون کہیں یا ان کے گھر میں ایک لڑکی کہیں ایسی ہے جو مطلب کہ نہ تھکتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ ڈپریشن میں جاتی ہے، نہ وہ ایک روٹین سے اکتاتی ہے، اور نہ وہ خدمت کر کر کے وہ کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ بھی میں ہی خدمت کرتی رہوں، کوئی میری بھی کرو، یہ چیز بھی اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ اور وہ کولو کی بیل، وہ جو بیل ہوتا ہے جو ایسے وہ پانی جس سے نکالتے ہیں، وہ بیچارے کی بیل کی آنکھوں پہ وہ پٹی سی باندھ دیتے ہیں اور وہ چلتا آ رہتا ہے تو وہ اس بیل کی طرح یہ مسلسل کئی سالوں سے چلی جا رہی ہے، اور ابھی تک اس کے جو گھر کے اس کے جو مالک ہیں انہوں نے اس کو ابھی تک مطلب کہ آرڈر نہیں دیا، اجازت نہیں دی کہ بھئی بس اب تم نے بہت خدمت کر لی، اب تم ریلیکس کرو، تم نے اپنا اس گھر میں ایک مقام بنا لیا ہے اور ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے خوش ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ لمٹ سے زیادہ ہم تم پہ بوجھ ڈالیں۔ تو اس کے اوپر بوجھ بڑھائی جا رہے ہیں، بوجھ جیسے جیسے وہ بوجھ مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا، فرما برداری شو کرتی ہے نا، ویسے ویسے اس کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، لیکن جی نہیں، بیٹیاں صرف آنٹی جی کی ہیں اور انہی کو ریسٹ چاہیے، اور انہی کے دل گھبراتے ہیں، وہی پریشان ہوتی ہیں، وہی گھر میں اکتاتی ہیں۔ 2 دن امی کے گھر میں نہ آئیں تو ان کا دل جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، اور ان کو روزانہ باہر کی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بندی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی 2-3 مہینے میں کبھی ہسبینڈ لے کے چلے جائیں تو وہ غنیمت سمجھتی ہے، اور خوشی سے وہ شکریہ ادا کرتے کرتے نہیں تھکتی، اور تعریفوں کے پل باندھ دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کے۔ تو مطلب کہ ایسا بندہ تو میں کہتی ہوں کہ کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گی ایسی بہو آنٹی جی کو؟ یہی وجہ ہے کہ آنٹی لوگ کہتے ہیں نا دوسری بہو کیوں لے رہی ہیں ادھر سے، تو آنٹی جی نے تو اسی لیے دوسری بہو ادھر سے لی ہے کہ ایک مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، دوسری بھی مل جائے گی۔ اور بہو جو ہیں انہوں نے کیوں اپنی بہن کا رشتہ یہاں پہ کروایا؟ ظاہری بات ہے، بہن ہے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ دینے والا کوئی ہو، میں کب تک اکیلی اس چکی میں پستی رہوں گی؟ بہن آ جائے گی تو چلے، نندے تو میرا ساتھ نہیں دیتی، ساس بھی اپنی مرضی کی مالک ہے، تو چلو بہن تو میرا احساس کرے گی نا۔ اور ویسے بھی جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ رشتے آج کل بہت مشکل ہو گئے ہیں، تو دونوں فیملیز ایک جیسی ہیں، تو اسی لیے یہ رشتہ ہو گیا ہے۔ اگر آنٹی جی کے بیٹے کو کوئی اچھی اس سے بہتر رشتہ مل جاتا تو ضرور آنٹی جی وہیں پہ رشتہ کرتی، پھر یہاں پہ کبھی بھی نہ کرتی۔ تو ادھر ادھر بہت چھان بین کر کے رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آنٹی جی کو جب مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو جا کے انہوں نے اپنی بہو کی بہن لینے کا رشتہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ خود ان کی نند بڑی نے بات کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ ہم نے بہت رشتے دیکھے ہیں، ہم مایوس ہو چکے تھے، 2 سال ہم رشتہ ڈھونڈتے رہے ہیں، تو ہمارے مطابق یعنی کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہمیں ملا نہیں، تو فائنلی انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا تو پھر یہی سے ملے گا، تو انہوں نے پھر وہیں پہ کر دیا، کیونکہ ان کو جس طرح کی بہو چاہیے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو جی اس پہ آج بات کرتے ہیں کہ آنٹی جی نے اپنی بہو کو اجازت نہیں دی ابھی تک، کس چیز کی اجازت نہیں دی وہ بھی بات کرتی ہوں، اور 12 ربیع الاول کے دن کی جو روٹین آنٹی جی نے شیئر کی تھی اور جو آنٹی جی کی بہو نے شیئر کی، تو دونوں کی ہی روٹین میں بہت زیادہ فرق تھا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو دیکھیں ویسے تو ہمارے معاشرے میں لڑکیاں پوری کوشش کرتی ہیں اپنا گھر بسانے کی، اور ان کو گھر سے تربیت بھی دی جاتی ہے کہ کوئی کڑوی کسیلی اگر ساس کر بھی لے تو سہ لینا، برداشت کر لینا، اپنا گھر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خراب نہ کرنا، تو کوشش کرنا میری بیٹی کہ ہماری عزت کی لاج رکھنا اور اپنے گھر میں اپنے قدم جما لینا۔ تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں ساس سسر کی خدمت کے ذریعے، پھر وہ چاہتی ہیں کہ ہم جلدی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اس سے بھی کہتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ مطلب کہ لڑکی محفوظ ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ بھئی اولاد ہو گئی تو نہ قدرے جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد ہونے کے بعد بھی قدر نہیں کرتے۔
तो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं बेचारी पढ़ी लिखी, लेकिन ऐसा ससुराल उनको मिलता है कि वो बेचारी कोशिशों के बावजूद भी वो उन बच्चियों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे तो कोई इतनी आंटी जी की तो बेटियाँ कोई इतनी सलीकामंद हुनरमंद तो ना इतनी कोई पढ़ी लिखी हैं, इसके बावजूद उनका बहुत नखरा है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अगर मैं बहू देखूँ तो वो हाफिज़ कुरान है, बड़ी पढ़ी लिखी भी है, तालीम का हुनर भी उसकी माँ ने उसको दिया है, और उसके बाद वो बड़ी सलीका शुआर है, बड़ी तमीज़दार है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ जो मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती, जो वो बहुत ज़्यादा मक्खन मलाइयाँ लगाती है ना, तो वहाँ पे मुझे शक होने लगता है कि ये कुछ जो ज़्यादा लोग करते हैं ना, इसके पीछे इसका कोई मफाद है या क्या वजह है, या इतना इसको ससुराल वालों ने डरा के रखा हुआ है कि हर वक्त ये चमचागिरी करती रहती है, और ये मतलब इतना अपने ऊपर क्यों बोझ डालती है एक्स्ट्रा, जो नहीं भी कर पा रही होती उस काम में भी ये घुसती है, और ये अच्छा बनने की, अच्छा और ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाती है। लेकिन इसको फ़ायदा कुछ नहीं होता। हम इसकी तारीफ़ कर दें, इसकी ऑडियंस इसकी कर दे, इसका हस्बैंड भी खैर वो भी इसका अब साथ देता है। मैंने अक्सर वीडियोज़ में देखा है कि वो अपनी बीवी की मेहनत को सराहता है, लेकिन सास और नंदों जिनकी नज़रों में वो अच्छा बनना चाहती है वो बन नहीं सकती। तो बहरहाल अब जी आंटी जी ने इसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी कि वो नए घर में जाए, नए घर में वीडियो बनाए, नए घर के हवाले से कोई भी अभी तक उसको बात करने की इजाज़त नहीं है। तो जो लोग कह रहे थे कि इसमें कुमकुम का भी पैसा लगा है, तो मुझे तो नहीं लगता। अगर उसका पैसा लगा होता तो आखिर वो थोड़ा सा तो हक जताती, कोई तो बात करती। बस उस दिन उसने बाज़ार में, वो भी मेरी वीडियोज़ बनाने के बाद, उसने हल्की सी बात की कि हम यहाँ से कुछ सामान लेंगे नए घर के लिए। इसके अलावा उसको अभी उस तरफ मतलब वो भी भटकी भी नहीं है, उस तरफ उसको जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अभी आंटी जी अपनी छोटी बेटी को लेके गई हैं, और आंटी जी सिर्फ छत दिखाती हैं, लोगों का ये कहना है आंटी जी पूरा घर नहीं दिखाती। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये बड़ा कंटेंट है, इन्होंने बहुत भरपूर तरीके से इसको कैश करना है। तो वो कभी भी घर कंप्लीट होने से पहले पहले आपको घर नहीं दिखाएंगी, वो आपको प्रॉपर होम टूर दिखाएंगी, और इस होम टूर से उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं। ठीक है जी। तो आंटी जी अपनी बेटी को तो ले गई घर दिखाने, लेकिन बहू को फिर भी नहीं ले गई। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि आंटी जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि ये घर बहुओं का है, हमारे लिए तो यही घर काफ़ी था, तो वहाँ पे मेरी बहुएं रहेंगी, मेरे नवाब पोतों के कमरे होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन देख लें आप, अभी तक भी उस बंदी को उस घर का नाम लेने की इजाज़त नहीं दी आंटी ने। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल की जो रूटीन आंटी जी ने अपनी बेटियों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब मौज मस्तियाँ की, और सारे घर का काम बहू के सर पे थोप के आंटी जी ने 12 रबीउल अव्वल को ईद के दिन की तरह मनाया। तो आंटी जी मुझे ये बताएं कि क्या हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है कि कमज़ोर के ऊपर जुल्म करो, कमज़ोर को और दबाओ, जितना वो करती है आप उससे डबल आप उसके ऊपर और बोझ डाल देती हो। अब मैंने जो देखा, कुमकुम उठी है सुबह, पूरा किचन उसने साफ़ किया है, पूरा किचन उसने जितने भी किचन की टाइल्स थी, जितने भी मतलब कि वहाँ पे जो भी एरिया था किचन का, उसने सारा उसकी डीप क्लीनिंग की, फ़र्श उसने धोया, और फिर उसने खीर बनाई, और फिर उसके बाद सब ये लोग मिलाद में चले गए हैं। क्या उसके सीने में दिल नहीं है? क्या उसका दिल नहीं करता कि वो कहीं जाए? आप लोगों ने क्यों उस बंदी को मतलब कि एक बेकार सी चीज़ समझा हुआ है, और अपनी नौकरानी की तरह आपने उसको समझा हुआ है। आपके बच्चों को वो संभाले, जब आपकी बड़ी बेटी आए तो अपनी छोटी बेटी उसके गोद में डाल दे, या फिर वो उनके लिए खाने बनाए, उनकी खिदमतें करे, या उनके फिर बच्चे संभाले। इसी तरह आपकी दूसरी बेटी आती है तो वो भी अपना बेटा उसके हवाले कर देती है। ख़ुद आप लोग चले जाते हो घर देखने। फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन भी आपकी बेटियां आई, आपने अपने कमरे में बैठ के खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब आपने गप्पे शप्पे लगाई। और वैसे कोई मेहमान आता है ना तो आंटी जी नीचे बिठाती हैं, लेकिन अपनी बेटियां आती हैं तो आंटी जी के रूम के अलावा कहीं नहीं बैठती। तो खूब गप्पे शप्पे लगा के आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई उसके खुद के 2 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को भी छोड़ के आप महफिल मिलाद में चली गई। एक बंदे के ऊपर आप लोग उसकी लिमिट से ज़्यादा जब बोझ डालते हो तो आपको खौफ नहीं आता? आप मतलब बच्चे आपके हैं ना, आपकी बच्चियों की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके बच्चे बेटियों के बच्चे हैं तो वो सँभाले ना। वो क्यों सँभाले उनके बच्चे? क्या मतलब
पैदा ही क्यों किए थे कि अगर आप लोग उनको संभाल नहीं सकते थे। तो जब भी उम्रा हज की बात आती है ना, लोग कहते हैं आंटी को, तो कहती हैं आंटी इसके बच्चे छोटे हैं, ये नहीं जा सकती। तो आपकी बेटियां जो हैं वो अपने बच्चे उसके सर पे थोप के तो कहीं भी चली जाती हैं, तो तब आपको शर्म नहीं आती? तब आपको एहसास नहीं होता कि वो भी एक जान है, वो भी थकती है, उसका भी दिल करता है वो कहीं जाए। उसका दिल नहीं कर रहा था 12 रबीउल अव्वल के दिन कि वो अपनी अम्मी के घर जाए। आखिर उसकी अम्मी के घर भी तो एहतमाम होगा ना। तो फिर बाद में जी लंगर भी उसी ने बांटा, सुबह खीर भी उसी ने बनाई। तो ये कहाँ का इंसाफ है? फिर सारा लंगर उसने बंटवाया बेचारी ने। ये अच्छी बात है? गलत बात है ये। इतना मत करें किसी के साथ। और फिर जब बात होती है तो आप कहती हैं कि इंसान है, इंसान ही करते हैं, जानवर तो नहीं दूसरों के काम आते। तो आप कब काम आएंगी उसके? आपकी बेटियों को कब एहसास होगा कि भाई हम जब आते हैं तो भाभी के साथ उसका साथ देने के बजाय उसके ऊपर अपने बच्चे थोप के आप खुद अय्याशियों के लिए चली जाती हैं, घूमने फिरने के लिए। आपको महफिल सुननी थी, क्या उसका दिल नहीं था महफिल सुनने के कि मैं भी जाके सुनूं? वो भी तो आपकी तरह की है ना, आप वो भी, उसका भी तो दिल था ना, मतलब वो भी तो मुसलमान ही है ना। लेकिन जी उसको घर में अकेले छोड़ के बच्चे उसके सर पे थोप के आप लोग चले जाते हो। और बेशक उनके मामू होंगे घर में, बच्चे चले उनके साथ, लेकिन खाना पीने का ख्याल रखना, छोटे बच्चे पोटी कर दें, पैम्पर चेंज करना, ये सारे मामलात तो माँ नहीं देखने होते ना। लेकिन आप माएँ ऐसी हैं कि आपको परवाह नहीं होती और आप उसके साथ थोप के गायब हो जाती हैं। तो बहुत मुझे दुख होता है जी। और अल्लाह माफ़ करे, अगर किस्मत से आप लोगों को अच्छी बहू मिल जाए, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर किस्मत से, क्योंकि आजकल किस्मत से ही अच्छी बहुएं मिलती हैं और किस्मत से ही अच्छे दामाद मिलते हैं। जो आजकल का दौर चल रहा है ना, यकीन करें बहुत नफसा नफसी का, रिश्तों की कदर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो अगर आपको कदर करने वाली बहू मिल जाए ना, तो खुदारा आप भी उसकी कदर करें। भले वो आपसे शिकायत नहीं करेगी कि आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं, वो शिकायत नहीं करेगी क्योंकि उसने घर बसाना है, घर बचाना है। लेकिन कल अल्लाह के ज़ूर तो आपने पेश होना है ना, वहाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। बेशक वो आपको कहे कि हाँ अम्मी जी आप चली जाएं, नंदों को भी बोले चली जाए, मैं घर संभाल लूँगी, लेकिन इंसान को खुद एहसास होना चाहिए ना कि ये गलत बात है। वो भी जवान है, उसका भी दिल करता है बाहर जाने को। सिर्फ आपके सीने में आपकी बेटियों को ही घुटन होती है घर में। आपकी बेटियाँ ही घर से कहते हैं ना, रोज़ आना बाहर आउटिंग के बगैर वो रह नहीं सकती। तो ये मामलात हैं जी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि कुछ खुदा का खौफ करें, और अगर आपको कदर करने वाली बहू मिल गई है, खिदमत गुजार बहू मिल गई है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और काम करें। वो मैं ये नहीं कहती घर के काम ना करें, बेशक उसका फ़र्ज़ बनता है, बेशक नंदे भी काम ना करें, घर आएँ तो बैठें, लेकिन थोड़ा सा तो एहसास कर लें, अपने बच्चे तो खुद संभाल लें। बाहर जा रहे हैं तो उसको भी ले जाएं, ठीक है, उसका भी हक बनता है। कभी आप चली जाएं, कभी वो चली जाए, लेकिन नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। मैं तो कहती हूँ इसके ऊपर एक पूरा ड्रामा बन सकता है। ये जो इनके घर की स्टोरी है ना, ये तो इनके घर का माहौल इनकी बहू ने अच्छा रखा हुआ है, वरना अगर कोई और ख़ातून होती जिसमें इतना सब्र ना होता तो इस घर में तो रोज़ झगड़े होते। अब वो इस घर का माहौल समझ गई है, इनकी नेचर समझ गई है, और उसको तरीका आ गया कि मैंने इनको कैसे डील करना है, तो इसलिए घर का माहौल बेहतर रहता है, ठीक रहता है। और ऊपर से वो बड़ी नंद से इतना डरती है। आज उसने जो वीडियो शेयर की उसके पीछे नात भी उसकी चल रही थी, अपनी नंद को, बड़ी नंद को, तो इतनी उसका तो वो शुक्रगुजार होती है। पत्नी इसकी बहन का रिश्ता ले लिया उसने, क्योंकि उसने बोला था ना कि ये रिश्ता मैंने लिया है, मैंने और अम्मी ने ये फैसला किया था कि हम कुमकुम की बहन जो है उसको अपने घर की बहू बनाएंगे। तो उसके बाद तो वो उसके एहसान के तले जैसे दब सी गई है ना, और उसको तो जैसे वो, मैं कहती हूँ कि पीरनी बना ली है ना उसने, और ये उसकी मुरीदनी बन गई है, ऐसे उसकी खिदमत बजा लाती है। बंदा ठीक है तुम कर सकती हो तो करो, लेकिन ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह तो जो भी बहू ब्याह के जाएगी तो लोग उसको यही कहेंगे कि वो देखो भाई वर्जन आंटी की बहू जो है वो कितनी खिदमत गुजार है। आप इस तरह का ट्रेंड सेट कर रही हो कि जितना मर्जी ससुराल वाले आपको लिताड़ते जाएं, आप बर्दाश्त करती जाएं, ये गलत है। ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा। बहरहाल हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, हम एज ए व्यूवर अपनी राय का इजहार करते हैं। मेरी तो यही राय है कि आप करें, खिदमत करें, कदर भी करें, लेकिन अपना जो मुकाम है ना उसको इतना भी आप, वो कहते हैं ना कि अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल ही आपने मतलब तबाह बर्बाद कर दिया। कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरी भी कोई इज्जत है। चलिए जो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।